Listen, students, I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Jammu Government Engineering College, Bihar. I am going to start the class of Cost Management of Engineering project. My topic is Tools and Techniques of Strategic Cost Management, in which in previous classes I taught so many tools and techniques. Now the next is Total Quality Management, TQM. A core definition of total quality management, TQM, describe a management approach to long-term success through customer satisfaction. In a TQM efforts, all members of an organization participate in involving process, product, service, and the culture in which they work. TQM, Total Quality Management. It is not a administration rather than a culture of any organizations. And a culture is not a very easy things. The word culture is not a very easy things in the organizations. It needs sacrifice. And care. Sacrifice, care, and human-based management. Without human factor, the work culture does not develop in any organizations. सिर्फ डंडा चलाने से जो है कोई काम हो जाए तब तो डंडा चलाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन से सारे काम नहीं हो पाते हैं। जिसमें किसी ऑर्गेनाइजेशंस के पूरे एम्प्लॉय को भाग लेना पड़ता है, उनकी भागीदारी अहम है, और ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से संभव है ही नहीं। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक वर्क कल्चर है। वही लोगों को जो है ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है, समर्पित करवाता है। आंतरिक तौर से तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म का एक प्रोसेस भी कह सकते हैं उसको।
कोई एक दिन में ये होने वाली चीज नहीं है. Loyal and devoted implies certainly very helpful to achieve the strategic goal of any organizations. So, for the sake of total quality management, any organizations have to culturify his organizations for the betterment by taking actions on overall activities A to Z, and correct all the activities, line up all the activities, and take the steps that the employee at all the level in the organizations take place and sacrifice their efforts in maximum for the accomplishment of a strategic goal. So certainly here the human factor is very important. Administration is also important, but parallel the human factors is also important to culturify the organizations for the betterment and accomplishment of a strategic goal. Okay. Now the next point, the next tool is benchmarking. Benchmarking is the practice of comparing business process and performance matrices to industry best practice from other companies. Dimension typically measured are quality, time, cost. Benchmarking means to compare himself with others in different aspects. In the course of benchmarking, any business entity compare itself with others companies in the same line of productions with respect to company shares, with respect to product cost,
with respect to quality of product, with respect to human resource expertise, and others platform, one company compare with others because here is competitions in the market. So in the competitions, one compare others to compete the rivals. कौन कौन सी बातें जो है उन कंपनियों में खास है, किन किन बातों में हमारी कंपनी पीछे है, हमारी स्थिति क्या है, एक कंपैरिजन जो है इसमें की जाती है, जिसको बेंचमार्किंग कहा जाता है। प्रोडक्ट के क्वालिटी पर, प्रोडक्शन प्रोसेस पर, टाइम पर, आफ्टर सेल सर्विसेज, हर एक चीज़ों पर कंपैरिजन की जाती है। बेंचमार्किंग इज यूज्ड टू मेजर परफॉर्मेंस यूजिंग ए स्पेसिफिक इंडिकेटर, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेजर्स, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ मेजर, साइकिल टाइम ऑफ एक्स पर यूनिट ऑफ मेजर, और डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ मेजर्स, resulting in a metric of performance that is then compared to others. मैंने पहले ही बताया कि यहाँ कंपैरिजन किए जाते हैं, तो कंपैरिजन के अंतर्गत जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो मेजर्स हो सकते हैं, उस पर तुलनात्मक अध्ययन हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी पर यूनिट, उनके एक किसी कंपनी के एक यूनिट को बनने में कितने समय लगते हैं, हमारे एक यूनिट को बनने में कितने समय लगते हैं, कॉस्ट तो है ही। साइकिल टाइम, प्रोडक्ट को प्रोसेस होके निकलने में क्या समय लगते हैं, दूसरे कंपनियों में क्या लगते हैं, ऑफ एक्स पर यूनिट ऑफ मेजर्स और डिफेक्ट्स पर यूनिट ऑफ मेजर्स। फिर हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें कितने प्रोडक्ट में जो है 1,00,000 प्रोडक्ट हमारे हैं, तो उसमें कितने प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव निकलते हैं, दूसरे कंपनियों के प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स निकलने का क्या मतलब कि जो है स्तर है। ये सारे का एक तुलनात्मक अध्ययन जो है बेंचमार्किंग के अंतर्गत किए जाते हैं, फॉर द सेक ऑफ बेटर परफॉर्मेंस देन अदर्स in the competitive environment. Also referred as best practices relating all activity in the organizations. In project management, benchmarking can also support the selection, planning, delivery of project, improvement in every activities within organizations is desirable to get target achieved. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ख्याल से बेंचमार्किंग जो है इस मायने में बड़ा ही अहम है
कि सर्वप्रथम तो किस तरह के प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाए, प्रोजेक्ट की डिलीवरी का क्या एक समय रखा जाए कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और हर एक जो गतिविधियां जो है ऑर्गेनाइजेशंस की जो है, जो प्रोजेक्ट के कार्य में लगी हुई है, उसको इम्प्रूवाइज किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए विद इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज डिजायरेबल टू गेट टारगेट अचीव। तो ये बेंचमार्किंग आपका प्रिसाइजली जो है समाप्त हुआ, जिसमें एक तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न मुद्दों पे किए जाते हैं, सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं इसका अध्ययन किया जाता है, और अपने आप को जो है वो कॉम्पिटिटिव जो माहौल में बेहतर परिणाम लाने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन किए जाते हैं, हर स्तर पर परिवर्तन किए जाते हैं, हर गतिविधियों में सुधार लाए जाते हैं। एक कार्य संस्कृति जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो, उसके लिए जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, मानवीय जो पक्ष हैं, उसको तवज्जो दिए जाते हैं। ये सब बेंचमार्किंग के अंतर्गत किए जाते हैं, जो कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक तकनीक है, टूल्स है, टेक्निक्स है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग is a business management strategy originally pioneered in the early 90s, focusing on the analysis and design workflow flows and workflow and business process within an organizations. BPR aim to help organizations fundamentally rethink how they do their work in order to improve customer service, cut operational cost, and to become world-class competitors. In the course of business process re-engineering, here the business management strategy originally pioneered in the early 90s, focusing on the analysis and design of workflow
and business process with within an organizations. BPR aim to help organizations fundamentally rethink how they do their work in order to improve customer service, cut operational cost, and become world-class competitors. तो ये बिजनेस प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो वर्कफ्लो है, वर्कफ्लो एंड बिजनेस प्रोसेस, उसमें जो है तकनीकी तौर से जो है सुधारात्मक काम किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। टेक्निकली उसमें जो है सुधारात्मक काम किए जाते हैं कि जो है ग्राहकों को जो है बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके और जो कॉस्ट है वो कम से कम लागत उसमें आए और कोई कंपनी जो है वर्ल्ड क्लास जो है वो कंपटीटर्स की श्रेणी में आ जाए। Now there are some cyclic aspect in business process re-engineering. You have look on this diagram. There is cyclic prospect in the business process re-engineering. Here, first, identify process. Review, update, analyze as is. कोई भी जो प्रोसेस है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, वो जैसा है जिस तरीके का है एज इट इज उसको जो है एनालाइज करना है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करनी है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, वो उसको असेस सही करने हैं। डिजाइन टू बी, नाउ redesign this process technically where the help of technology is needed. Do provide that. So here redesign of process is important. Do redesign the process technically. That leads to test and implement to be. After design, do test and implement it. So this is the whole business process re-engineering. Identify process, review, update, analyze as it is,
जैसा है, जिस तरीके का है उसी तरह का आप उसको एनालाइज कीजिए। डिजाइन टू बी, इस तरह से अब उसको फिर आप डिजाइन कीजिए या रीडिजाइन कीजिए। एंड देन टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट टू बी, उसको जांचिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सो दिस इज एक्चुअली the improvement in the process of the strategic management technically. Where there is a need of technology to provide it. अगर कारीगरों के हाथ में जो है कुछ नए तरह के टूल्स जो है प्रोवाइड करने से प्रोडक्शन प्रोसेस में सुधार होते हैं, बेहतर परिणाम आते हैं, देन इन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग डू दैट बाय प्रोवाइडिंग sophisticated tools, machinery to improve the process, business process. BPR set to help company radically restructure their organizations by focusing on the ground up design of their business process. कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य पद्धति का जो तरीका होता है उसी में कुछ खामियां होती हैं, जिसके कारण कार्य सही ढंग से निष्पादित नहीं हो पाते। तो जो कार्य पद्धति में जो खामियां हैं उसका जो डिजाइन जो है वो गड़बड़ है, तो उसको रीडिजाइन किया जाना चाहिए। ये तो तभी हो सकता है जब हर एक जो प्रोसेस जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस के भीतर उसको असेस किया जाए। इस क्रम में जो ये आपको चित्र जो मैंने दिखाया इसमें यही तो होता है। आइडेंटिफाई प्रोसेस, there are so many processes going on in the business organizations. So first of all, identify all the process, review it as it is, design it to be, इसके डिजाइन में कोई खामियां हैं, then redesign it and test it and implement it. कहने का मतलब है कि जो कार्य पद्धति में जो है अगर कुछ गड़बड़ी है, उसका डिजाइन सही नहीं है, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंतर्गत यही किए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर प्रोडक्शन में लगे हुए जो सुपरवाइजर हैं उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो है प्रोडक्शन हेड को रिपोर्ट करने पड़ते हैं किसी भी प्रोडक्शन से संबंधित जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसके मामले में।
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको कई काम और भी जो है ऐसे करने पड़ते हैं जो प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, जिसके कारण जो है रिपोर्ट होने पर भी जो है वो कोई सुधारात्मक कदम जो है वो उठा नहीं पाते हैं समय। अब जो ये वर्क और प्रोसेस है, जो कार्य प्रक्रिया है, कार्य पद्धति है, उसमें ये खामी नजर आई कि एक आदमी जो है उनको जो स्पेसिफिकली जिस काम के लिए रखा गया है उसके अलावा भी उन्हें अन्य काम भी करने पड़ते हैं, जिसके चलते रिपोर्ट होने के बावजूद भी वो जिस काम के लिए उनको रखा गया है उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। उन सब कामों से जो है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको मुक्त किए जाएंगे, जिसलिए कि प्रोडक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सुपरवाइजर्स लोग रिपोर्ट करते हैं, हेड जो है उस पर जानकारी होने के बावजूद भी पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं, उत्पादन का काम प्रभावित होता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कैसे जो है बिजनेस प्रोसेस को हम दैट इज a very small example of business process re-engineering. BPR set to help company radically restructure their organizations by focusing on the group of design of their business process. हर एक बिजनेस प्रोसेस जो है, एक बिजनेस के अंदर जो है वो कई बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं, छोटे छोटे कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कई कार्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं। सबको आइडेंटिफाई करके जहाँ जो खामियां हैं, स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ी है, डिजाइन में जो गड़बड़ी है, उसको सुधारा जाना चाहिए। BPR is influenced by technological innovations as industry players replace old method of business operation with cost saving innovations technologies such as automation that can रेडिकली ट्रांसफॉर्म बिजनेस ऑपरेशन। मैंने पहले ही कहा था कि वो बिना टेक्नोलॉजिकल जो है रिफॉर्म्स के जो है ये बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग जो है इसका स्कोप ही बहुत लिमिटेड हो जाता है। मुख्य रूप से इसमें जो है जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो नए जो टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, टूल्स हैं, नए जो टूल्स हैं, मशीनरी हैं, उनका प्रयोग हुआ जाना बहुत जरूरी है। इफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू improve his business process,
So, in the business process re-engineering, automation, innovation, technology, innovative ideas that can radically transform business operations is very important, and do adopt such technology to improve business process re-engineering. BPR is also known as business process redesign, business transformations, or business process change management. देखिए, इसके बहुत सारे नाम हैं बीपीआर के। बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट। नई नई जो बातें हैं, नई जो टेक्नोलॉजी है, प्रबंधन के नए नए जो तौर तरीके हैं, जो टेक्नोलॉजी जो नई जो आ रही हैं, नए जो आइडियाज आ रहे हैं, उसका समुचित उपयोग जो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के अंतर्गत किया जाता है। Now the next JIT, just in time inventory. The name is itself reflects so many ideas about that tools and techniques of strategic cost management. Just-in-time inventory is an inventory strategy utilized by production company to reduce cost by having only enough inventory to meet the current demand. देखिए, एक्टिविटी बेस्ड जो है, जो एनालिसिस होते हैं, तो एक एक्टिविटी जो है बिजनेस के अंतर्गत इन्वेंट्री भी होता है, भंडारण। अब देखिए, भंडारण के कारण भी जो है लागत में कमी आती है, गुणवत्ता में सुधार होती है। ये बिजनेस का ये एक एक्टिविटी है, इन्वेंट्री भंडारण। उसके चलते भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में जो है सुधार लाए जा सकते हैं। जो सेवाएं दी जा रही हैं उसमें गुणात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो कितना कारगर है। उसने खोज निकाला कि इन्वेंट्री से क्या क्या जो है किफायतें जो है बढ़ती जा सकती हैं। तो ये बातें सामने आई कि भंडारण में आवश्यकता से ज़्यादा जो है वो जो उत्पादित जो सामान है, फिनिश गुड्स है,
उसको ज़्यादा नहीं रखा जाना चाहिए। रॉ मटेरियल्स भी उतने ही रखे जाने चाहिए, उसका ये भंडारण उतना ही होना चाहिए जितने की आवश्यकता है। अनावश्यक भंडारण जो है वो बहुत सारी कठिनाइयों को जन्म देता है, और ज़्यादा भंडारण का मतलब ही होता है ज़्यादा वेस्टेज। भंडारण के अंतर्गत भी जो है वो वेस्टेज होते हैं, और जो फिनिश गुड्स है, तैयार माल जो है, उसमें उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। ज़्यादा दिन तक जो है अगर भंडारित किया जाए तो जो फिनिश गुड्स है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है। खास कर द पेरिसेबल गुड्स, जल्दी खराब होने वाले खाने पीने की चीज़ें जो है, प्लास्टिक के चीज़ जो होते हैं, बहुत दिन हो जाने के बाद प्लास्टिक जो है वो टूटने लगता है, फटने लगता है। रबर की चीज़ है, उसकी भी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। रैक्सीन, पुराना रैक्सीन का ऊपर वाला देखिएगा कि जो होता है वो उखड़ने लगता है। तो ये भंडारण जो है वो उतना ही किया जाना चाहिए कि हम जो है मार्केट में जो डिमांड है जो चीज़ों की, उसको सुगमता पूर्वक हम पूरा भी करें, और अनावश्यक जो है हमारे जो है जो हमारा जो गोडाउन है उसमें अनावश्यक उत्पादित जो माल है वो रहना भी नहीं चाहिए। वो निकलते रहना चाहिए, उसमें एक धारा होनी चाहिए, वो रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। रॉ मटेरियल्स के भी साथ भी यही है। फ्रेश रॉ मटेरियल्स आएंगे, उसको उससे हमारा उत्पादन होगा, काम करेंगे, फ्रेश चीज़ें हमारी बनेंगी। अब नहीं कि कच्चा माल को हमने मंगवा लिया, उसका उपयोग किया नहीं, वो गोडाउन में ही जो है उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई। अब जब उसकी गुणवत्ता में कमी गोडाउन में ही आ गई तो उसी से अगर हम जो है अपना तैयार माल बनाएंगे तो वो भी तो जो है उसकी भी तो गुणवत्ता कम ही होगी। तो ये एक बिल्कुल ही इन्वेंट्री कंट्रोल जो होता है एक अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का विषय इसलिए है कि चूंकि मार्केट का जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। आने वाले समय में उसकी क्या वस्तु स्थिति रहेगी, इसको समझाना जाना बहुत जरूरी है। फॉरकास्टिंग, नहीं तो कल मान लिया कि जो है मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट का जो है सो डिमांड रहे और आपका प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट कर जाएगा। क्यों कि साहब हम जो है अपने जो है इन्वेंट्री में जो है उतना माल गोडाउन में हम रखते ही नहीं है जितना का डिमांड आ गया, तो अभी लॉस बेयर कीजिए। तो ऐसा जो है मतलब किफ़ायत भंडारण जो है कौन काम का है कि बाजार में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, डिमांड है, और आप वहाँ पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक बेहतर जो है फॉरकास्टिंग टेक्निक्स जो है होने चाहिए इन्वेंट्री के लिए। कब जो है हम अपना इन्वेंट्री बढ़ाएं, भंडारण बढ़ाएं, कब हम अपनी इन्वेंट्री कम रखें। साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब किसी उत्पाद के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहते हैं,
जैसे गर्मी में जो है पंखा है, कूलर है, उसके जो है दाम बढ़ ही रहते हैं। तो कोई भी जो पंखा कूलर वगैरह बनाने वाली कंपनी है, गर्मी के पहले जो है अपनी भंडारण जो है वो बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? इन्वेंट्री बढ़ाएगी ना, इसलिए गर्मी आने वाला है, ये सब चीज़ों का डिमांड रहेगा, पहले से ही बना के रखने होंगे, इसलिए कि ये कम दिए हुए कम समय में उतना चीज़ बन नहीं सकता है। इन्वेंट्री तो हमको करना ही पड़ेगा, माल तो हमको रखने ही होंगे, क्योंकि आने वाला समय में जो है उसका डिमांड है। तो ये सब बातें जो हैं एक इन्वेंट्री के अंतर्गत होती हैं, जिससे कि जो है कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। हमें इन सब चीज़ों का जो है ध्यान जो है रखना होता है। ये एक स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक तकनीक है, टूल्स है, टेक्निक्स है। Just in time inventory is a strategy to increase efficiency and decrease waste by receiving goods only as they are needed in the production process, thereby reducing inventory cost. JIT inventory refers to an inventory management system with objective of having inventory readily available to meet demand, but not to a point access where you must stockpile extra product. JIT is very important in the wear of goods of perishable nature. It reduces the wastage of raw material, semi-finished goods, finished goods. So JIT just in inventory increases the efficiency of any business. It is very helpful in cost reduction, so leads to cost leadership. इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट लीडरशिप के ख्याल से बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण है। आपके प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है ये कम करने में जो है बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर बेहतर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट है तो आपके बहुत सारे पैसों की बचत हो जाएगी और आपके उत्पाद की गुणवत्ता भी जो है बेहतर हो जाएगी। हम अनावश्यक जो है भंडारण जो है न करें। एक सोच, एक तकनीक, एक विजन्स जो है वो फोरकास्टिंग टेक्निक्स के जरिए जो है विकसित करें कि हमारा इन्वेंट्री जो है वो सही रहे, जिससे हमारा जो है वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कॉस्ट दोनों जो है वो जो है मुनासिब रहे और कॉस्ट स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के ख्याल से हमारी बाजार में कॉम्पिटेंसी जो है बनी रहे।
Now the next balance scorecard. This is one of the tools and techniques of study cost management. BSC, balance scorecard. Balance scorecard BSC refers to a strategic management performance metrics used to identify and improve various internal business functions and their resulting external outcomes. Here, data collection is crucial to provide quantitative result as managers and executives gather and interpret the information to make better decisions for future of their organizations. ये बैलेंस स्कोर कार्ड के तहत जो भी एक्टिविटी जो हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, तो परफॉर्मेंस जो भी है उसको क्वांटिटिफाई किया जाता है, डिजिटलाइज भी कह सकते हैं उसको। किस परिणाम में जो है परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं इसको क्वांटिटिफाई करना। परफॉर्मेंस तो एक गुणात्मक जो है सो शब्द है, कार्यकुशलता एक या परफॉर्मेंस तो एक गुणात्मक शब्द है, अब्स्ट्रैक्ट शब्द है। उससे क्वालिटी जो है वो पता चलता है। लेकिन जब इसी को जब क्वांटिटिफाई किया जाता है, जैसे बहुत ही अच्छा, साधारण, साधारण से नीचे, कुछ खराब, देख लीजिए एक परफॉर्मेंस को 5 खंडों में जो है इस तरह से बांट करके उसको एक डिग्री के रूप में जो है सजा दिया और उस तरह से किसी परफॉर्मेंस को जो है वो जो है क्वांटिटिफाई किया। क्या पॉइंट इनको परफॉर्मेंस पर है, हर एक एक्टिविटीज डे टू डे उसको असेस किया, परफॉर्मेंस को असेस किया और उसका रिपोर्ट दिया, और वही रिपोर्ट जो है बैलेंस स्कोर कार्ड कहलाता है, BSC। द रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी एक्टिविटीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस relating the performance, and here the performance is quantified. Day to day, the relating reports are so called balance scorecard. जैसे परीक्षा में बच्चों को जो है अंक दिए जाते हैं, गणित में इतने अंक, साइंस में इतने अंक, आप सोशल साइंस में इतने अंक, तो ये क्या हुआ, परफॉर्मेंस को जो है क्वांटिटिफाई कर देना। उसी तरह से बैलेंस स्कोर कार्ड में किए जाते हैं कि परफॉर्मेंस को क्वांटिटिफाई कर दिया जाता है
और एक निश्चित अंतराल पर जो है वो बराबर जो है उसको जज किए जाते हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं। Here some key points of balance scorecard. A balance scored is a performance matrix used to identify, improve, and control a business, various functions, and resulting outcomes. A business scorecard involve measuring four main aspects of a business, that is learning and growth, business process, customer, and finance. Finance means financial performance. BSC allow company to pool information in a single report to provide information into service and quality in addition to financial performance and to help improve efficiency. तो ये कुछ की पॉइंट्स हुए बैलेंस स्कोर कार्ड के। जिसमें ये देखा जाना चाहिए कि जो तीन बातें हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के अंतर्गत कि लर्निंग एंड ग्रोथ, इस बैलेंस स्कोर कार्ड से क्या सीख रहे हैं और क्या उन्नति हो रही है, ये जो है जाना जा सकता है। बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस का जो प्रोसेस है ये कितना स्मूथली चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कितना जो स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का जो गोल है उसके अकम्प्लिशमेंट के लिए ये उत्तरदायी है। ये सब कुछ जो है वो बैलेंस स्कोर कार्ड से जो है वो जाने जा सकते हैं। कस्टमर एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है, और जो संतुष्ट ग्राहक हैं वही तो बाजार है। तो ये देखा बैलेंस स्कोर कार्ड से ये भी देखा जाता है कि ग्राहक कितने जो हैं वो संतुष्ट हैं। जैसे बैंकों में जो है वो ग्राहकों के ही मदद से जो है इस बैलेंस स्कोर कार्ड बनाए जाते हैं।
उसमें ग्राहकों का जो संतोष है वही महत्वपूर्ण होता है। और उसके अनुसार जो है बहुत से बैंक जो हैं वो अपने कार्य पद्धति में सुधार लाती है। डे टू डे ये काम किए जाते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हर एक एक्टिविटी को जो हम क्वांटिफाई करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जज करते हैं, तो क्या स्टैंडर्ड है, उससे कितना डेविएशंस है उस एक्टिविटी का, ये तो जाना जा सकता है और समय रहते उसमें सुधारात्मक कार्य किया जा सकते हैं। इसीलिए एक निश्चित अंतराल पर जो है ये बैलेंस कोड, स्कोर कार्ड टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्ट्स किए जाते हैं और उसके आधार पर जो है सुधारात्मक काम समय रहते किए जाते हैं। एक निश्चित अंतराल पर, उचित अंतराल पर ये बैलेंस कोड कार्ड टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे होता क्या है कि हमारा जो अपव्यय हो रहा है वो अपव्यय बंद हो जाते हैं। एंड दिस लीड्स टू फिनेंशियल परफॉर्मेंस, जो कि स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट लीडरशिप के ख्याल से बहुत अहम है। तो ये जो बैलेंस कोड स्कोर कार्ड है वो ऑर्गेनाइजेशंस की जो है इफिशियंसी को बढ़ाने वाला है, क्योंकि फिनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो उससे बढ़ते हैं तो निश्चित है कि जो है इफिशियंसी जो है कि उस ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ेगी। कम लागत में जो है गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पाद वो बाजार में मुहैया कराएगी तो निश्चित है कि वो इफिशिएंट तो कहाँ ही जाएगा। तो आज की कक्षा जो है इस संदर्भ में यहीं तक। अगली कक्षा की बातें अगली कक्षा में होंगी। धन्यवाद।